So students, let's do the first question. We have a ball which is released from the top of a building. So released means initial velocity is 0. So this released word tells you that initial velocity u is equals to 0. Now this ball will clear a window and the height of the window is 2 meters high at a distance of 10 meters below the top. So that's a at a distance of 2 meters below the top. So this is telling you about the window. So two things have been told to you about the window. First thing is it is a 2 meter high and where it is located at a distance of 10 meter below the top. So this is the top from where this ball is released, or you can say dropped. So releases or dropped is the same thing. In both the cases, initial velocity is 0. Now 10 meters distance, this 10 meters, we have a window. So this is our window. And this window, so this figure is not up to the scale. You can see this distance I have taken 10 meters. So not to the scale this figure. If I want to make it to scale, then okay, this is somewhat realistic, right? So that's somewhat. So we should try to make realistic figures. So this distance is 10 meters and this distance is. We have to find this time actually. This time we have to find. We have to find the ball will clear a window. And these are the two things that were told to you about the window. So how will we read this sentence? It means ball. So ball will clear window in nearly how much time? So that's your question. So that's how you need to read the question. How much time? So ball will clear a window in nearly fill in the blanks. So that's your question. So how much this time the ball will take? So ball is falling down. So how much time will it take to pass, to clear this window? Okay. So of course here, because the formula that we know about the time is S is equals to ut plus half at square. So this is the this displacement, or when you are moving in one direction, that's the distance also same. So this distance is the distance traveled in time t. Okay, so this is not s multiplied t. This means that s is a function of t, or you can say s depends on t. Value of s depends on, isn't it? So this is the way of writing. Like you might be you were writing p of x polynomial as a function of x square plus 2x plus 3 in, yes, remember? Yes, sir. So here it means p is a
function of x, means p depends on x, means value of p depends on x. If x is equals to 1, what will the value of p? P will be equals to, see, p will be equals to value of when p equals to 1, when you put 1, so you get 1 square plus 2 plus 3, that's equals to 6. If x is equals to 2, what will the value of p? 2 square plus 2 into 2 plus 3, yes, 4 plus 4 plus 3, that is equals to 11. So now you have understood the value of p depends on what is the value of x. So similarly here, the distance traveled depends on the time taken, right? More time, more the distance traveled. This parabolic relation. So let this be the time t1 to travel 10 meters and the time to travel this 12 meters. So t1 to travel 10 meters and t2 to travel 12 meters of distance, isn't it? This distance is how much? 12 meters. This distance is how much? 10 meters. Okay, got this question? So, Yes, sir. so now this is your t. So this is your t. So your t is actually t2 minus t1. Yes. So how much is the time taken to travel 12 meters? And then how much is the time taken to travel 10 meters? And then divide these times. You will get the time the ball has taken to clear the window. Means बॉल को कितना टाइम लगा जब बॉल यहाँ थी और यहाँ तक पहुंची, तो यहाँ से यहाँ तक बॉल को कितना टाइम लगा ये आपको निकालना। तो 12 मीटर्स ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा और 10 मीटर्स ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, तो उनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। Got the question? Yes, sir. Now, see, these questions are MCQ, and you have the options 1 second, 1.3 seconds, 6 seconds, and 0.13 seconds. So you have 4 options. So obviously we need to find this t2 minus t1. So students, we can take the value of A as G in this question, and as the motion is downward, so downward direction we will be taking as positive. So G we can take as G is also downward, so we can take it as plus 10 meter per second square. Instead of 9, let us take it 10, so that the question will be easier. So here, so whenever this is 10, so what will be S? S is equals to ut, so ball is dropped. So dropped, u is 0, so 0 into t is 0, so this term will cancelled out and you are left with half at square. So a is your plus 10, that is your g. So 10 into 2, so what do you get? 5. So s is equals to 5t square. Okay? Okay, sir. Because here you will be putting this, from here you will get half into half gt square, and value of g is 10, so half into 10 into t square, so you get 5t square. Now you have to calculate the value of t, so write this equation in terms of t. So t is equals to s upon 5 under the root, isn't it? Yes. So that's the value of t. So you have to find t2 minus t1, right? So this is a general formula that you have got about t. So let it be capital T, okay? Let it be capital T, the time that you have to find, okay?
So what is the time taken by the wall to clear the window? That T is equals to T2 minus T1. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So what will be T2? The distance is 12 meters divided by 5. So 12 by 5, no need to write the units here, minus, because this is 5 meter per second square. So, so 12 by 5 minus 10 by 5. Yes. So T1 is S is 12 meters, S1 you can say, S2 is 12 meters, and S1 is equals to 10 meters. So T2 will be S by 5 means 12 by 5, and T1 will be 10 by 5. Yes. Yes, sir. Sir. So students, you can divide 12 by 5. You can even take common. Under root 2 by 5 can be taken common also. Like here, this 10 is actually, you can cancel out 5 times 1 and 5 times 2. You can cancel it out. So from here, what will you get? This is under the root 2.4 minus under the root 2. Okay. So what is the value of root 2? What is the value of root 3? Root 2 is 1.414. Root 3 is 1.732. Remember these two values, and third is 5 is 2.2. Okay, remember these values. So what will be under the root 2.4? It will be somewhere in between these two. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So even if you so you can take it either 1.5 or 1.6, right? So I can take it as 1.5, 1.4, 2.4, and then 3. So its value will be somewhere between 1.5. So 1.5, if I am taking it up to 1 decimal, so 1.4. So 1.5 minus 1.4. So that will be 0.1 approximately. So which option is correct? Option 4, 0.3 second. Is it okay, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Noted it down. Yes, sir. So Excuse me, sir. yes. Sir, please give entry to Sanya. See, students, the timings of our classes are almost fixed. Whenever we will have a holiday, we will have 2 classes. One is at 11 a.m. and another is at, like, the timings, evening classes timings is changed. It's now 7 p.m. every day. So note these timings, 7 p.m. every day. I'm not going to give the entry if you are late for more than 5 minutes. Okay? Keep this thing in your mind. If you are late by more than 5 minutes, I'm not going to give you the entry. So our classes timings are on holidays it is 11 a.m. and 7 p.m. and on the normal days it's 7 p.m. So just try to be on time and just be regular. Make your notes properly. Okay. So those who are late, they can watch the video to do this question. So first question we have done. Now comes the second question. A particle starts from rest with uniform acceleration a
its velocity after n second is v, then the displacement of the body in last 2 seconds. Yes. So students, the information that is given to us, let us write this, draw. So this is the path. Suppose the particle starts from rest. So from rest, its initial velocity is 0, and it is moving with acceleration a, and in n seconds, so t is equals to n second, the velocity is v. Okay, so you have to tell the displacement in last 2 seconds. Okay, you have to tell the displacement in last 2 seconds. And what are the values given to you? V, so in terms of v and n, so s is as a function of t, as because acceleration is constant, so ut plus half at square. See, because here u is constant, a is also constant, then only this equation is possible. So as u and a are constant, so the only variable which varies is t, and that is why I have written that s is a function of t. Okay, Yes, sir. now your answer must be in terms of v and n, all these 4 options. So u is 0, so this term will be no more. Now I don't want a, I want v and n here. So instead of a, what I want here? V and n. So what is the relation between v, a and n? So for that we have another equation, v is equals to u plus at. Yes? Yes, sir. Now v is equals to, u is 0, then at, a into t, so this velocity is in n seconds, so time is n seconds. So here also you can write even v is a function of t. Okay, because a and u are constants. So v, have you understood, students? Here the difference, this is not v multiplied t, this is not v multiplied t. No. This is v. Sir, what is v multiplied t? V multiplied t is v. Okay, so either you write v or you write v as function of t. This means it is giving you more information that v is a function of t, v depends on t. Okay, simple this. Okay, first thing. Second thing, v after time t, this is another information which this vt is given you. So v depends on t, first information, and second information is v after time t. So what do you think is more appropriate to write, and how do we read it? V of t, how do we read it? V of t, like you read f of x, like you read p of x, you write p of x, q of x. So similarly, so q of x doesn't mean that you are multiplying q and x, but here students, like I am writing, this is of course a multiplied t, so this is a multiply n. So here I am writing the bracket, so this means a multiplied n. Got it? Yes, sir. Yes, sir. So I don't want a here, but I want v and n. So put the value of a here in terms of v and n. So what is the value of a? So V divided by n. v divided by n. So we have got the value of a. Now put this value of a in this equation. Okay, so what will you get? You get s is equals to so s, which is a function of t, means s distance traveled in, or displacement in t seconds, is half into a is v by n
into t square. Okay, so we have simply put the value of a in terms of v by n because it is given to us that in n seconds the velocity will be v. Is this okay? Okay, sir. So what we have to find in this question? We have to find, this is the distance traveled in, what is the distance traveled in last 2 seconds? So what is the distance traveled here? So we know, students, that last second distance we can travel, distance traveled in nth second because time is here n seconds. So distance traveled in nth n seconds, and in the last second what will be the distance? Distance traveled in s, which is n minus 1 second. So this is the distance traveled in n minus 1 second. This is distance traveled in n second, and if you add both these two, you get distance traveled in last 2 seconds. Yes or no? Yes, sir. So do you remember the formula for distance traveled in last second, nth second? Distance traveled in nth second is given by u plus, see, distance traveled in n seconds is equals to ut plus half at square. We know this formula. Distance traveled in t seconds, right? And if t is n, we can write n here. So distance traveled in t seconds is this. Yes, let us write them again. See, how do we write distance traveled in t seconds? Yes, distance traveled in t seconds is s of t is equals to ut plus half at square. Agreed? Now, distance traveled in n seconds. So how will we write it? Put t is equals to n simply, isn't it? That is equals to u into n plus half into an square. Okay. What is the distance traveled in nth second? This is distance traveled, total distance traveled. This is total distance traveled in n seconds. This is nth second. So what is the formula for that? Sn. So I will write here as subscript n. Can you see the difference? Distance traveled, and how am I writing? This is s of n, and this is n in the subscript. Okay. Okay, sir. So this, what is the formula for this? The formula, do you remember? U plus half to u. half a into 2n minus 1. This is the distance traveled in nth second. We have derived this formula. You can derive it yourself. You can find. So what is this s nth? S nth is nothing but s of n minus s of n minus 1 second, isn't it? So you can derive this formula, you get this one. Okay. भाई distance traveled in nth second कितना आएगा? हाँ? This is the distance traveled in nth second. तो कितना आएगा? Distance traveled in n seconds minus distance traveled in n minus 1 second. तो कितना आ जाएगा? Distance traveled in nth second. Yes or no? And that is the formula. So here you have to tell the distance traveled in last 2 seconds. So last second में Sn ये आ गया. So what you need to find, it means you need to find distance as Sn last second में, और एक उससे सेकंड पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो 2 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड में आ गया ना डिस्टेंस. तो एस nth डिस्टेंस, रिमेंबर यहां पर हमने s कितना निकाला है. ये जर्नल फॉर्मूले थे, ये सभी के लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में a इज इक्वल टू v बाई एन. तो s क्या निकाला था हमने? s ऑफ t इज इक्वल्स टू हाफ v बाय n t स्क्वायर. तो
ये निकाला है ना, यानी कि वैल्यू ऑफ ए कितनी निकाली है। आप इसको यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप निकाल लें इसमें एस जो है, इफ यू फाइंड, तो इसमें इसमें आप कैसे निकालेंगे, एस ऑफ इन लास्ट 2 सेकंड, ये जो है हमने लास्ट 2 सेकंड्स जो हम निकाल रहे हैं, तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को निकालने के। पहला तरीका तो जो मैंने बताया, लास्ट सेकंड और 1 सेकंड उससे पहले, उन दोनों को ऐड कर दो, दोनों डिस्टेंस। और दूसरा तरीका क्या है, ये पूरा निकाल लो, एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस 2। यस और नो भाई, एन सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और एन माइनस 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस किया, तो उसमें से वो माइनस कर देंगे तो लास्ट 2 सेकंड का नहीं आ जाएगा क्या। Yes, sir. तो दो तरीके हो गए ना इस क्वेश्चन को निकालने के लिए, या तो लास्ट के 2 सेकंड्स को ऐड कर दो, लास्ट सेकंड में कितना किया और लास्ट 1 सेकंड और उससे पहले कितना किया, या फिर क्या करो, ऐसा निकाल के माइनस करो, दोनों से यू विल गेट द सेम आंसर। चलो पहले वाले से ट्राई करते हैं। तो एस एन ये हो गया हमारा फॉर्मूला, तो u प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, v बाई एन। अच्छा u तो 0 ही हो गया इस केस में, Yes, sir. तो अभी हम ये फॉर्मूला यहां से लिख रहे हैं, दिस वन वी आर राइटिंग फॉर एन एस एन। तो u 0 हो गया स्टूडेंट्स इस केस में, और हाफ इंटू ए हो गया आपका v बाय एन, और बाकी आपका आ गया 2n माइनस 1 प्लस हाफ ऑफ ए, तो वही आपका n की जगह क्या आ जाएगा, अब n की जगह क्या आ जाएगा, n माइनस 1 क्या आ जाएगा, N minus 1. सो 2 इंटू n माइनस 1 क्लियर। तो यहां से क्या है आपका आंसर, हाफ v बाय एन तो कॉमन है, Yes, sir. हाफ v बाय, इसको v को थोड़ा ढंग से बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे थोड़ा सा। तो हाफ v बाय एन कॉमन है दोनों में, तो अंदर क्या बचा, 2n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2 माइनस 1 क्या हो गया स्टूडेंट्स, Minus 3. माइनस 3 हो गया ना। तो क्या है आपका आंसर, 1 बाय 2 इंटू वी बाय एन इंटू 2n प्लस 2n कितना हो गया, 4. 4n, एंड माइनस 1 माइनस 3 भी कितना हो गया, Minus 4. माइनस 4। उसके बाद दिस इक्वल्स टू 1 बाय 2 वी बाय एन, 4 कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा अंदर, n माइनस 1। 1. सो 2 से 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2, तो कितना आ गया, 2v बाय एन इंटू एन माइनस 1। अरे आया नहीं आया, Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, Sir, option 1. ऑप्शन 1, राइट। अब दूसरे तरीके से भी निकाल लो इसको, सर मैं तो ऐसे निकाल लूंगा, ये वाला है दूसरा तरीका मेरा, ठीक है कोई बात नहीं, यहां से निकाल लो दूसरे तरीके से। ये क्या तरीका है, इसमें है कि ये मेरा डिस्टेंस था n सेकंड्स में, और इतना मेरा डिस्टेंस था n माइनस 2 सेकंड्स में। तो बेटा कितना बच गया ये डिस्टेंस, लास्ट 2 सेकंड्स आ गई नहीं आ गई, हाँ या ना। तो यहां पर क्या आएगा आपका, वही जो, हाँ तो यहां ये ले सकते हैं आप, वही है ये वाला फॉर्मूला। तो यहां अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड्स वाला। यहां आपने यूज किया था ये वाला, nth सेकंड वाले यूज किए थे आपने, और यहां यूज कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड्स। तो इसमें u 0 हो गया और हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए कितना हो गया, v बाय एन, तो हाफ v बाय एन टी स्क्वायर, टी कितना आपका n n स्क्वायर, माइनस
हाफ v बाय एन इंटू, अब कितना टाइम है, n-2 का स्क्वायर। यस, समझ गए? Yes, sir. तो कितना आ जाएगा, Yes, sir. हाफ v बाय एन इज कॉमन, अंदर क्या बचा, एन स्क्वायर, यहां से तो एन स्क्वायर बच गया, और यहां से क्या बचा, n-2 का होल स्क्वायर, तो माइनस, ध्यान से करेंगे, n-2 का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2 to 4। यस, तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू 1/2 v बाय एन, और स्टूडेंट्स n और ये अंदर चेंज हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4n, और ये n स्क्वायर से n स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, और यहां से 4 क्या आ जाएगा, कॉमन बाहर आ जाएगा, तो s इज इक्वल्स टू 1/2 v बाय एन इंटू 4 इंटू, अंदर क्या बच गया, n पॉजिटिव है उसको पहले लिख लो, और 1 नेगेटिव है उसके बाद, 4 कॉमन ले लिया था ना आपने, और यहां से 2 कट गया, तो वही आ गया 2v बाय एन इंटू n प्लस 1। दोनों तरीके से समझ आया क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार तो हमने लास्ट सेकंड ऐड की, लास्ट सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, और एक उससे पहले वाली सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उन दोनों को क्या कर दिया हमने, ऐड। ठीक है, ये वाला फार्मूला nth सेकंड वाले फार्मूला लगाए हमने, एक बार n के लिए और एक बार n-1 के लिए। और ये है दूसरा जो हमने सिंपल फार्मूला लगाया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला अपना फार्मूला, और उसमें u 0 था, हाफ ए टी स्क्वायर, और t कितना आपका n, तो हाफ a कितना है, v बाय एन, तो a n स्क्वायर, और इस बार भी वही n-2 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कितना आ गया आपका, हाफ v बाय एन n-2 का स्क्वायर, और ये था आपका हाफ v बाय एन n स्क्वायर। तो फिर इन दोनों को माइनस कर दिया, तो आपका डिस्टेंस इन लास्ट 2 सेकेंड्स आ गए। डन स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं आज। अरे मजा आ रहा है, नहीं आ रहा कुछ? Sir. अगर कम मजा आया है तो डू दिस क्वेश्चन वंस मोर, ओके? एक बार और करोगे तो असली लर्निंग होगी बेटा, ठीक है ना? एंड एडवांटेज आपके पास यही है, अपने नोट साथ के साथ बनाते रहो, एंड देन कुछ अगर छूट जाता है तो यू कैन वॉच द वीडियोस और वहां से अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। अब थोड़ा एक इजी क्वेश्चन कर लें। Yes, sir. तो कंसीडर द मोशन ऑफ द टिप ऑफ ए सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक। तो ये आपका क्लॉक है, और क्लॉक में आपको पता 3 हैंड होते हैं, एक आवर, एक मिनट और एक सेकेंड। तो you have to watch the motion of this second hand for 1 minute, okay? So what have you found? There is no relation between second and minute hand. क्या उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स भाई, रिलेशन है ना, वो अगर 1 मिनट में मूव करती है, वहीं आ जाती है 1 मिनट में मूव करके सेकंड वाली हैंड, तो मिनट वाली थोड़ा सा तो मूव करेगी, नहीं करेगी? तो देयर इज ए रिलेशन, ओके, देयर इज ए रिलेशन, तो इसीलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलो, द डिस्टेंस कवर्ड इज 0। False. Sir, true. डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ। क्या पाथ लेंथ 0 है इसकी? सेकंड No, हैंड sir. आपकी No, यहां sir. से शुरू हुई थी, और यहां से शुरू होकर उसने पूरा एक चक्कर लगा लिया, तो पाथ लेंथ कितनी आएगी इसकी? व्हाट इज द पाथ लेंथ? 2 pi. 2 2 पाई। pi r. हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये रेडियस सर्कमफ्रेंस आ जाएगी 2 पाई, ये पाथ लेंथ आ गया। एवरेज स्पीड इज 0। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू
बिल्कुल ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 2πr/t। जब डिस्टेंस जीरो नहीं है तो स्पीड जीरो हो सकती है? No, sir. No, sir. लास्ट पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी जीरो। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? Displacement. Total distance by total time. तो यहां था डिस्टेंस और यहां है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहीं से आप स्टार्ट हुए थे ए पॉइंट से और वापस ए पर ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो। So, तो कौन सा पॉइंट करेक्ट है? मोशन sir, इन option 1 four. मिनट। तो मोशन ऑफ द टिप ऑफ सेकंड हैंड इन 1 मिनट इज जीरो। अब मैं यहां पर क्वेश्चन को चेंज कर दूं, आंसर मैं यही चाहता हूं, तो यहां सेकंड हैंड की जगह मैं कर दूं मिनट हैंड। ठीक है, तो और क्या चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन में मुझे? द मोशन ऑफ टिप इन ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इन हाउ मच टाइम? One. 1 आवर। बिल्कुल ठीक है, तो मिनट की जगह क्या आ जाएगा? 1 आवर। ठीक है, और अगर मैं यहां मिनट हैंड की जगह अब कर दूं आर हैंड, ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा टाइम? अरे 1 day. 1 डे। चलो 1 डे भी ठीक है, और भी कोई आंसर आ सकता है? 24 hours. 24 hours. 24 आवर्स ठीक है, और भी कुछ आ सकता है? 12 आवर्स भी तो आएगा बेटे। सबसे पहले तो 12 आवर्स ही आएगा। 12 आवर्स में वापस वहीं पहुंच जाता है ना हैंड अपना, तो 12 आवर्स के मल्टीपल्स में वहीं पहुंचेगा। तो 12 आवर्स में भी, 24 आवर्स में भी, 36 आवर्स में भी, 48 आवर्स में भी, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो भेड़ चाल मत चला करो, तुम एक बच्चा आंसर बोल दे तो वही बोलना शुरू कर देंगे सब। तो यूज योर ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि आप जो क्वेश्चंस दैट यू आर डूइंग, ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। तो ट्रिकी क्वेश्चंस में हरदम चांसेस होते हैं कि अगर आप एक के पीछे एक चलेंगे ऐसे कि एक बच्चे ने आंसर दे दिया तो बाकी सबके तो दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि इजी ऑप्शन मिल गया है। हाँ, बस नकल वाली बात हो गई। तो स्टॉप डूइंग दिस, रीच द कंक्लूजन विद योर ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड, with your own calculations, with your own thought process. okay? किसी का सुनकर आंसर नहीं बोलना आपको। चलिए, और उससे डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करो। एक बच्चा आंसर देता है, सारे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ए शिप ऑफ मास, यू हैव ए शिप, इसका मास कितना है? 3 × 10⁻⁷ kilograms. That's the mass of the ship and is pulled by a force. और कितनी है ये फोर्स? 5 × 10⁴ न्यूटन। और कितना डिस्टेंस मूव किया इसने? 3 meters. 3 meters. So what is the speed of the ship? So speed is nothing but the magnitude of velocity. So कितना होगा? फॉर्मूला हमें पता है, v is equals to u plus at. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो और दूसरा फॉर्मूला v² - u² इज इक्वल टू 2as। दो फार्मूले आते हैं ना आपके जिसमें v इन्वॉल्व है, Yes, sir. तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बेटा दोनों में से? सर पहले हमें एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। That yes, you are right. I've already told you that in all the three equations of motion, acceleration you will always find. So acceleration तो निकालनी पड़ेगी। चलिए acceleration निकाल लिया, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये 1 या 2 to find the value of v? Sir, second. Why? Sir, because if first time is given, Yes. formula of time is we have to take time also, but we in question time is not given. Yes. In this question, what is given? T is given or distance is given? Sir, distance. Distance, that is 3 meters. तो इसलिए we will not be using this formula. अब ऐसा आपको पता है 3 meters है, बहुत बढ़िया। U आपको पता है 0 था। ओके, क्यों? क्योंकि शिप एट रेस्ट, कहाँ था शिप?
Rest. So u is initial velocity is 0, right? So 0. this is 0. So now what is the value of a? A we have to find. Okay. So how we are going to use this f? F is given to us and m is given to us. We are not using these two variables. So what is, Equals to ma. and we need a. So what is the formula which is linking these three? A and AMF. F is equals to Ma. which law is it? Second law. Newton's second law. Okay. So let us find the value of A. So what is the value of A? A will be equals to F by M. M. So A is equals to, what is F? 5 into 10 raised to the power 4. What is M? So students, just be careful that you are putting the values in standard international units. That is kilogram Newton. So I have already told you standard international unit. That is MKS system. Meter, kilogram, second, MKS, joules, Newton, Kelvin. Okay. Yes, sir. So, so the advantage is that if you put the formula, if you put the unit in SI units, standard international unit, MKS system, you will get the answer in MKS system. So in MKS system, you have the units of distance meter and time second. So you'll get the answer in meter per second. So 10 raised to the power 4. So this is 4 and instead of 7 we'll get 3. So 5 upon 3 into 10 raised to the power 3 meter per second square. So that is your acceleration. Yes. Yes, sir. So now what will be your V? So V is equals to under the root 2as. Yes. And that is equals to under the root 2 into what is A? 5 by 3 into 10 raised to the power 3 you can write. Multiplied by what is S? That's 3. So 3 times 1, 3 times 1 cancels out. And this is 5 multiplied 2. How much is it? 10. So 10, and here 10 3 times. So 10 will left 2 times. So what is 1 upon 100? Under the root 1 upon 10 raised to the power 2. So we'll get 1 upon 10, and that is equals to 0.1 meter per second. So which option is correct? So second. Option 2 is correct option. So easy question था ये. चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ. When a bus suddenly takes a turn, passengers are thrown outwards. किस लिए? Because of, Inertia. हाँ, अरे बेटा ये सर्कल में जैसे आपने मूव किया, टर्न किया ना आपने, आप ऐसे जा रहे थे और फिर आपका टर्न आया तो आप ऐसे, तो ये जो ये दिस मोशन इन है, ये किसका पार्ट है? ये जो आर्क है सर्कल का है ना. तो जब आप कर्व में मूव करते हैं तो आपकी डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंशियल. ओके. तो बॉडी तो जाना चाहती थी सीधा, लेकिन बस के साथ जो आपका फीट अटैच था और जो आप बैठे हुए थे, तो वो पोर्शन जो है वो कहाँ, वो तो बस के साथ जाएगा, अटैच है. तो लोअर पोर्शन तो आपका बस के साथ मूव कर रहा है, लेकिन जो आपका अपर पोर्शन है वो इनर्शिया के कारण सीधा जाना चाहता है. तो दैट इज व्हाई you will be thrown outwards due to inertia of motion. Okay. Okay, sir. Next, a man sitting in a train in motion is facing the engine. He loses a coin up. He, instead of loses, he tosses, आना चाहिए यहाँ, tosses. He tosses a coin up and the coin falls behind him. तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है? ये हमने पहले भी किया ये क्वेश्चन ऐसा ही. यस. Yes, sir. Yeah. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ? द ट्रेन इज मूविंग. द ट्रेन इज, यस बिल्कुल ठीक, करेक्ट ऑप्शन. फॉरवर्ड विद एक्सेलरेशन. क्यों? सपोज
आपने जब कॉइन उछाला तो ट्रेन की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन जा रही थी किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड से। अब जो कॉइन ऊपर हवा में गया है तो उसकी स्पीड भी कितनी है? जैसे वो ट्रेन से अलग हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। अब तो उसके ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग नहीं रही। पहले तो जब वो टच में था, आपके टच में था और आप ट्रेन के टच में थे, तो हम सब ट्रेन के टच में थे, तो वो अगर वो ट्रेन एक्सेलेरेट होती तो वो भी एक्सेलेरेट हो जाता। लेकिन अब ट्रेन तो एक्सेलेरेट हो गई, ट्रेन ने तो अपनी स्पीड कर ली 21 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो कॉइन था उसकी स्पीड तो उतनी रही ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स इज नॉट एक्टिंग। जब वो एयर में है तो उसके ऊपर सिर्फ वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटेशन पुल इज एक्टिंग। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, तो हॉरिजॉन्टल कितनी रहेगी? 20 ही रहेगी। तो ट्रेन की जो है वो 21 हो गई, यानी आपकी 21 हो गई, तो आप थोड़ा सा आगे निकल गए। और जो जो कॉइन गिरा वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, वो जहां पर उछला था उससे वो 20 मीटर पर सेकंड ही आगे गया, जबकि आप चले गए 21 पर। तो आप ज्यादा आगे चले गए और कॉइन आपके पीछे गिर गया। और मैंने बताया भी था कि इस केस में जो है आप रिलेटिव डिस्टेंस, तो रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ AT स्क्वायर, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। एक्सेलरेशन सपोज अगर 1 है, ट्रेन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जा रही है, तो हमने निकाला था 1 सेकंड में कितना आएगा डिस्टेंस? 0.5 मीटर। तो जो कॉइन है वो 1 सेकंड अगर आपने उछाला और वो हवा में 1 सेकंड रहा, तो आपके कॉइन जो है वो आपके 0.5 मीटर पीछे गिरेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया कंसेप्ट? बेटा अगर डाउट हो तो प्लीज आप पूछ लिया करो। ये रिलेटिव कंसेप्ट है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, लेकिन इसमें सारी चीजें रिलेटिव टर्म्स में है। डिस्प्लेसमेंट भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी भी रिलेटिव टर्म्स में, और एक्सेलरेशन भी रिलेटिव टर्म्स में। सर रिलेटिव का मतलब क्या होता है? जो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी जब हम करते हैं, जैसे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आप कर रहे हो, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, तो दैट इज रिलेटिव। रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी विल बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल। So this is the initial velocity of train with respect to ball. इसलिए इसको कैसे रीड करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, विल स्टडी आल्सो दिस इन डिटेल। लेकिन अभी के लिए आप इक्वेशन समझ लो, ये इक्वेशन लिख लो कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉल इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस दिस एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ये टी और ये क्या है? ये दोनों वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके और ये कौन सी वेलोसिटी है इधर जो लिखी हमने? रिलेटिव। ओके तो ये फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बी इज टी BT माइनस टी। तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम थी स्टूडेंट्स, तो इसीलिए दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या हो गया? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई उनकी? 0। इसीलिए S इज इक्वल टू UT, तो ये टर्म आपकी खत्म हो गई। और एक्सेलरेशन, अब इसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 है कॉइन का, ये तो एक्सेलरेट कर नहीं रहा। ट्रेन का एक्सेलरेशन है 1, तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉल इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बॉल। बात आई समझ में कुछ? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, क्योंकि बॉल तो एक्सेलरेट कर नहीं रही, तो ATB क्या हो जाएगा आपका? 1। तो वही 1 हमने आप पुट कर दिया, टाइम 1 सेकेंड, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 0.1 मीटर। 1.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस? 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस हो जाएगा इनके बीच में? 2 सेकेंड्स में 2 सेकेंड्स में अगर 2 सेकेंड्स एयर में रहा आपका कॉइन, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा इनके बीच में? वही S इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और आपने बहुत ऊंचाई पर उछाल दिया ट्रेन, और कॉइन बहुत ऊंचाई पे थोड़ा चला गया। ट्रेन की हाइट भी ऊंची ले लो, थोड़ा सा जो है रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर 2 सेकंड कॉइन अगर एयर में है, आपकी रूफ नहीं है ऊपर, तो 2 सेकंड अगर हवा में रहा तो कितना
हो गया स्टूडेंट्स, 0.5 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स। और अगर 3 सेकंड हवा में रह जाता कॉइन तो कितना पीछे गिरता आपसे? तो आप 0.5 इंटू 9 दैट इज 4.5. 4.5। तो आप अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, जो पहले किया 0.5, दूसरे सेकंड में जो डिफरेंस वो 1.5, और तीसरे में 2.5 मीटर। इन तीनों रेशियो निकालना, 0.5 इज टू 1.5 इज टू 2.5 कितनी आई? 1 इज टू 3 इज टू 5। याद आ गया कुछ? Yes, sir. तो सक्सेसिव इंटरवल्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसकी रेशियो क्या होती है? सक्सेसिव इंटरवल्स में, ये फर्स्ट सेकंड में, ये सेकंड सेकंड में, ये थर्ड सेकंड में। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ फर्स्ट सेकंड में इज टू डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड सेकंड इज टू डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड, तो उसकी रेशियो हमेशा क्या होती है? 1 इज टू 3 इज टू 5। याद आ गया ये? यस। Yes, sir. चलिए ये 2-3 क्वेश्चंस और हैं छोटे छोटे। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फॉल्स है, ये फेल्स नहीं है स्टूडेंट, फॉल्स थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड्स ऑफ इट्स फॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। निकाल सकते हैं क्वेश्चन? क्या दे रखा है इसमें? लास्ट 2 सेकंड में कितना किया उसने? लास्ट 2 सेकंड्स में 40 मीटर्स, लास्ट 2 सेकंड्स। तो यानी कि एस एन प्लस एस एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 40 मीटर्स। याद आ गया कुछ? हमने क्वेश्चन किया था आज, उसमें हमें ये 40 मीटर निकालना था, ये दोनों गिवन थे, यस और नो? तो इसमें आपको अब हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, ठीक है? निकाल लेंगे, 2 तरीके से किया था ना ये क्वेश्चन आज हमने। Yes, sir. तो करके, हाँ तो करके दिखाओ मुझे, कौन करके दिखाएगा? अभी नहीं, इसका आंसर आफ्टर द क्लास। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, डू दिस क्वेश्चन। Sir, sir, मैं आपके पर्सनल को भी सकता हाँ व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। करने के बाद, if body starts from rest at time t equals to 0, the acceleration time graph is shown to you. What is the maximum velocity attained by the body? क्या होता है इसका एरिया? क्या बताएगा इस ग्राफ का एरिया? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन यूनिट्स क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया की यूनिट्स आ जाएंगी। तो सेकंड स्क्वायर सेकंड कट गया, क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। किसकी यूनिट है बेटा मीटर पर सेकंड? Velocity. वेलोसिटी की। तो इसका एरिया निकाल लो, हाफ इंटू बेस कितना है? 10 सेकेंड्स, इंटू एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या आ गया आंसर आपका? 50 meter per second. 50 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी। गॉट इट? चलिए Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन। फॉर द गिवन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ द मोस्ट सुटेबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनमें से कौन सा होगा? ये है आपका स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, ये आपका एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आपका टाइम है सेकंड्स में। तो अब आप मुझे, अब आपको इसको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है? वेलोसिटी टाइम, ठीक है? तो अभी आपने ऊपर क्वेश्चन किया है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में चेंज करना है। सपोज अगर इतना था तो वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है नहीं कर रही? ये एरिया अगले अगले में फिर एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो वेलोसिटी फिर इंक्रीज हो गई, अगले में फिर इंक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हो गई, फिर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। हाँ या ना? Yes, sir. वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही? इट इज इंक्रीजिंग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
अब बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप या तो ये समझ लो कि इसका एरिया आपको यहां बताना, अरे मुझे ये बताओ ना यहां तक एरिया कितना हो गया इस टाइम तक, एरिया सपोज इतना एरिया हो गया आपका, ठीक है बेटा, इसका एरिया आपकी वेलोसिटी देगा ना इस पर्टिकुलर टाइम पे। अब आप मुझे बताओ इसका जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ना? यस Yes, Yes. sir. भाई सपोज एक्सेलरेशन जो है वो आपका चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ एक्सेलरेशन था 1 सेकंड, सपोज 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। तो वीटी ग्राफ का आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो ये ग्राफ है, ऐसे समझ लो वीटी ग्राफ का क्या है ये स्लोप। अरे वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा ना, वीटी का स्लोप क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, तो वीटी का स्लोप क्या होगा, विल गिव यू एक्सेलरेशन। Acceleration. तो आप मुझे बताओ कि किस ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, यानी कि स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन, किस में एक्सेलर आप देख रहे हैं ना एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, यानी कि किस में स्लोप बढ़ता जा रहा है, इनमें से कौन सा ग्राफ ऐसा है जिसमें स्लोप बढ़ता जा रहा है, बताओ 1 2 3 4। यहां स्लोप कितना है यहां से यहां तक, अरे बेटा स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट ही है, थीटा कांस्टेंट है या नहीं हर पॉइंट पे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हाँ या ना? Yes, sir. तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, तो स्ट्रेट लाइन ऑफ कोर्स उसका स्लोप क्या है कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है इस केस में कांस्टेंट है या नहीं? तो क्या ये आंसर हो सकता है हमारा, इसमें तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट कहाँ है, क्या ये आंसर हो सकता है 1? No, sir. सेकंड इसमें भी वही कहानी है, स्लोप कांस्टेंट है यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो ये ग्राफ बनता आपका, इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यस, तो ये हो सकता है क्या ऑप्शन, No, sir. Right. इसमें बताओ, इसमें इसमें क्या हो रहा है, स्लोप आपका क्या कर रहा है, स्लोप Increase. स्लोप इज इंक्रीजिंग, यानी कि एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, तो ये एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. और इस केस में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या है 0, तो इस केस में एक्सेलरेशन ग्राफ क्या बनेगा, यहीं पर ही बनेगा 0, इसी के ऊपर रहेगा, इसी लाइन के ऊपर ही, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है 0, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। आई कुछ बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? Sir, option third. यस, ओके स्टूडेंट्स, so Yes, sir. that's all for this class. Thank you so much for being with me. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Good afternoon, sir.